surrounding can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, we will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent, and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids, hence it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of -5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we prepared is a suspension. Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example of colloids. The particle size in colloids is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size, but their presence can be observed with the help of an ultramicroscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects a colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a colloidal solution of egg albumin. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering, if in the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties as that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute.
Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of -5 in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect. ₹3 per kg. The mixture is formed by mixing the sugar is ₹2.10 and 2.52 per kg. What is the ratio of cheaper to the costlier? Means जो सस्ता है और जो महंगा है उनका रेशियो क्या होगा, ये तो पूछना है ना। तो सस्ता कितना है हम लोग का 2.10 and rupees 2.52 और उसको बेच कितना मेरा उसके मिक्सचर को हमको पता है कि ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहाँ जो है ये भी हम लोग का सीपी होगा मिक्सचर का, ठीक है। तो हम लोग का परसेंटेज कितना है 25%, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब ये सीपी है और ये हम लोग का प्रॉफिट और दोनों को मिला के हम लोग का सेल हो गया। सेल कितना है 5 यूनिट का, 5 यूनिट इंडिकेट कर रहा है कितना 3 को, तो 1 यूनिट कितना करेगा 5 यूनिट अगर 3 को करा तो 1 यूनिट कितना करेगा, डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ रहा है बताओ तो 2.40। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 24, ठीक है 2.40 है ना। बड़ा वैल्यू कौन है ये, इसमें से 40 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 12.12 आएगा, इसमें अगर करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 30.30, तो पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4 and 10 मीन्स 2 and 5, 2:5। देखो 2:5 है सर, 2:5। ठीक है, किस रेशियो में मिलाया जाएगा 2:5 में, या कोई वैल्यू है नहीं, कंपेरिजन है, तो यहाँ पर रेशियो ही हम लोग का आंसर है 2:5 के रेशियो में इसको मिक्स किया जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, ये बात क्लियर है। देखो पहले वाला जो है ₹2.10 का, दूसरा ₹2.52 का, बोलो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, जिससे कॉस्ट मेरा ₹2.40 है। तो ₹2.40 कहाँ से आया, ₹2.40 आया, ₹3 पर केजी सेल कर रहा है, तो ₹3 हम लोग का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ₹3 सेलिंग प्राइस है। अगर यहाँ हम कॉस्ट लिए, यहाँ पर हम कॉस्ट लिए, तो यहाँ भी कॉस्ट आएगा, यहाँ एसपी तो यहाँ भी एसपी आएगा, तो सीपी तो यहाँ भी सीपी आएगा। जो ₹3 का बेच रहा है ना, जो ₹3 का बेच रहा है वो 25% प्रॉफिट इसमें ऐड है, तो उस प्रॉफिट को इसे हटा देंगे, तो 25% का फ्रैक्शन आएगा 1/4 मीन्स 4 यूनिट सीपी तो 1 यूनिट प्रॉफिट और दोनों मिला के 5 यूनिट, और 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है ₹3 को, तो 1 यूनिट कितने को करेगा, 1 यूनिट कितने को करेगा 60 पैसे, इसलिए 4 यूनिट 60 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो ₹2.40 आया हम लोगों का, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना 3 into 5 into 4, अगर ये करते तो 0.65 वो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो 2.40 आएगा सीपी जिसको बेच रहा है। Should freely available water to mix with the soda with ₹60 per liter, ठीक है। देखो एक वाटर है एक सोडा है, ठीक है। सोडा जो मिला रहा है वो कितना है, क्या क्या प्राइस का है, ₹60 पर लीटर का है प्राइस, और जो हम लोग का वाटर होता है उसका वैल्यू 0 है, फ्रीली बोल दिया 0 पर लीटर है ना, ₹0 पर लीटर है। तो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये भी हम लोग का कॉस्ट है और ये भी हम लोगों का कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या आएगा कॉस्ट ही आएगा, यहाँ हम लोग का कॉस्ट आएगा। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट 25% है, तो प्रॉफिट 25% मींस 1/4 का फ्रैक्शन है, और बेच कितना मेरा ₹50 पर लीटर, ठीक है, ₹50 पर लीटर बेच रहा है, इसका मतलब है 4 और 1 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1 यूनिट 10 को, इसलिए 4 यूनिट, तो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट क्या आ जाएगा हम लोग का 40,
इसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है दोनों को मिलाने के बाद 40, है ना। इसमें क्या होगा 40 ही 40 ही बचेगा और तो कुछ होगा नहीं, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 20, कट गया, ये आ जाएगा हम लोग का 1:2, 1:2। देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर। पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस क्या है हम लोग का ₹60 पर लीटर, है ना। और ऑयल जो है, इस ऑयल का प्राइस है हम लोग का, ऑयल का प्राइस है ₹40 पर लीटर। और इन दोनों को क्या कर रहा है ना, इन दोनों को मिला रहा है और इन दोनों को मिला करके बेचा जा रहा है 75 पर लीटर। बट 75 पर लीटर में जो बेच रहा है ना, उस पर 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ। तो ये हम लोग का सीपी है पेट्रोल का, ये हम लोग का सीपी ऑयल का। तो मिक्सचर जो आएगा, ये जो मिक्सचर आएगा ये भी हम लोग का सीपी ही जाएगा, है ना। तो 75 पर लीटर है, तो हमको पता है कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो ये हम लोग का सीपी और ये हम लोग का प्रॉफिट, इन दोनों को मिलाएंगे तो सेल एसपी। और एसपी कितना दे रहा है हम लोग का, एसपी दे रहा है 75 पर लीटर, ठीक है। तो ये जो 5 यूनिट है मिला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 75। तो 1 यूनिट पे क्या हो जाएगा 15, इसलिए 4 यूनिट का सीपी क्या आ जाएगा 15 इंटू 4 इक्वल टू 60। ये हो गया 60। और 40 में से अगर हम 60 को अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0। अगर ऐसा होता है तो क्या कंडीशन आता है पता है, अगर ऐसा आ जाए तो क्या कंडीशन आएगा कि हम लोग का जो मिक्सचर है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि जो ले रहा है हम लोग का कहाँ से लिया जा रहा है, जो भी हम लोग का टोटल ले रहा है वो कहाँ से लिया जा रहा है, सीपीआर हम लोग सीपी लिखे ना, अच्छा ठीक है, इसका क्वांटिटी लिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 0 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का 20 आ रहा है, मतलब रेशियो हम लोग का बन ही नहीं रहा है, क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा नॉट पॉसिबल, मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। Should water be mixed with soda at ₹12 per liter, ठीक है। हमको पता है कि एक वाटर हो गया, एक सोडा हो गया। वाटर का वैल्यू 0 है और सोडा का वैल्यू दे दिया है ₹12 पर लीटर, है ना। और इसका वैल्यू है 0 पर लीटर, 0 पर लीटर, ठीक है। Abur adds to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at 13.75 per liter, ठीक है। 25% फ्रैक्शन 1/4 and 4 and 5 is equal to 4 and 1 is equal to 5 and 5 unit represent 13.75 and 1 unit is equal to 13.75 divided by 5 into 4। हमको तो कॉस्ट चाहिए ना, into 100 कर देते हैं, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में 10 और 7 and 5, है ना। फिर ये कट जाएगा हम लोगों का 25, 8 बार में 200 and 3 टाइम्स 75, 11। देख लेंगे वो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 25 1, ठीक है, 11। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एवरेज आ रहा है हम लोगों का 11 आ रहा है, ठीक है। पानी मिला देने से जो इसका एवरेज है वो क्या हो जाएगा हम लोग का 11 हो जाएगा। तो क्या है हम लोग का ज्यादा वैल्यू इसका ये है 1 और ये 11, कुछ नहीं 11। तो 1:11 का रेशियो में मिलाया जाएगा। अब कौन पहले इस बात को देखो, एक बात को समझना, अगर यहाँ प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट है, तो यहाँ पर जो आता है ना हम लोग का प्रॉफिट और लॉस दोनों आता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस दोनों परसेंट आता है और इससे जो आता है हम लोगों का वो आता है हम लोग का सीपी, क्योंकि प्रॉफिट जो चार्ज किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में चार्ज किया जाता है, कॉस्ट के। प्रॉफिट किस पर चार्ज होता है, कॉस्ट पे। तो जो रेशियो आएगा वो भी हम लोग का किसका आएगा, कॉस्ट का आएगा। इस बात को ध्यान रखना। He sold some buses at 9% profit, 9% and 36%, ठीक है। और ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हो गया हमें, 75% का, ठीक है। तो इसमें से अगर हम माइनस कर दे 36, 16, 19,
है ना, और ये हो जाएगा हम लोगों का 8 80 होगा ना। हाँ, तो कितना आ गया हम लोग का इसका 19:8। अब देखो, अब 19 प्लस 8 को अगर हम ऐड कर दे तो आ जाएगा हम लोग का 27। अभी 27 रिप्रेजेंट कर रहा है 108 को, तो एक रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 4 को ना, 4 को, इसलिए 19 4 36 का पूछा था, मीन्स 32। द नंबर ऑफ बसेस कितना हो जाएगा हम लोग का 32। अब एक बात यहाँ पे समझने का है, क्या बोलो, इसमें क्या चीज है जो तुम लोग को समझना है। बात ये इसमें कि हम तुम लोग को बोले थे कि प्रॉफिट जो चार्ज होता है हम लोग का वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में होता है ना। मीन्स ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा हम लोग का, ये सीपी का रेशियो आएगा। और हम यहाँ पर क्या किए कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ बसेस को ले लिए, 108 बस को ले लिए। हमको तो लेना सीपी चाहिए था, क्योंकि ये जो हम लोग का रेशियो आया है ये सीपी का रेशियो आया है, लेकिन हम ले लिए 108 बस। रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का 108 जो बस है ना, इसका सीपी नहीं दिया हुआ है। बात समझे, ये जो 108 है इसका सीपी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 108 हम लोग का इसका सीपी नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते 108 बस का सीपी 108 है और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अगर सीपी अलग होता तो ये कैलकुलेशन भी हम लोग का अलग हो जाता। बात समझे, 4/5 ऑफ इट्स सीपी। ठीक है, 4/5 में सीपी, सीपी का 4/5 का मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 है हम लोग का ये सीपी है, तो 4 एसपी है। होगा या नहीं होगा बताओ, होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात साफ साफ बोल दिया, फर्स्ट चेरेट 4/4 4/5 ऑफ इट्स सीपी, है ना। तो नीचे वाला जो हम लोग का वो सीपी हो जाएगा और ऊपर वाला, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है वो नीचे होता है। ठीक है, और जो आउटकम्स होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, ही सेल्स फर्स्ट चेयर, पहला चेयर को बेचा ऑफ इट्स सीपी, सीपी का तो नीचे वाला सीपी, मतलब 5 में खरीद रहा 4 में बेच रहा, 5 में खरीद रहा 4 में बेच रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, इसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर ऐसा बात है कि इसको 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे, सीपी पे। लॉस परसेंटेज हमेशा कैलकुलेशन सीपी पे होता है जब तक लिखा रहा हो। इसका मतलब हुआ कि उसको 20% का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक तुम लोगों को। सेकंड में क्या कह रहा है कि वो 5/4 में सोल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये 4 सीपी है और ये मेरा एसपी है, और इनके बीच में 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 यूनिट का प्रॉफिट। ये 1 यूनिट का प्रॉफिट 4 में तो 100 पे कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 25%। मतलब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि हम क्या करेंगे सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बना लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन मीन प्रॉफिट लॉस सब मिला के उसको 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और बेच कितना में रहा है हम लोग का, परचेज कितना में कर रहा है 900 रुपए का। अब 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 900 में, तो 100 पर कितना, 10 बार में 1/10 मीन्स 10% हो गया, 10% का प्रॉफिट हो रहा है पूरा ट्रांजेक्शन पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 और ये हो जाएगा 10 मीन्स 3:2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा माइनस में ना, यहाँ से तो हम लोग नॉर्मली माइनस कर दिए, लेकिन ये वाला हम लोग का ये वाली चीज माइनस में, ये कल ही हम लोग बताए थे कि ये माइनस में मीन्स ये कम है ये ज्यादा, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से माइनस करेंगे -20 को, तो इस कंडीशन में क्या होगा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का 20, जोड़कर ये हो जाएगा 30। तो ये हम लोग का जो है 30 हो जाएगा, है ना। तो 15 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 1:2, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का 1:2, क्योंकि ये माइनस में पहले ही से ही तो है माइनस में ना, और इसमें से माइनस करेंगे इसको, वो बड़ा था तो आसानी से हो गया, और इन दोनों में कौन है ये छोटा है, तो इसमें से माइनस करेंगे 10 में से -20 को, 1:2 आए। अब ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 900 को, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग कुछ ऐसा दिया नहीं, बोल रहा 2 चेयर है और दोनों चेयर का एक साथ दे दिया 900। और हम लोग का ऐसे भी बताए थे कि प्रॉफिट परसेंटेज है तो जो हम लोग आउटकम्स आता है वो कॉस्ट के अकॉर्डिंग आता है, मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके रिस्पेक्टिव में होता है, कॉस्ट के रिस्पेक्टिव में होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1 3, ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 900 को, तो 1 यूनिट कितने को करेगा, तो तुम बोलोगे 300। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 300 हो जाएगा और दूसरा 600 हो जाएगा। पूछा क्या था, फाइंड द सीपी ऑफ cheapest milk, 300। If he mixes 5 liter of water which is freely available in 20 liter pure milk, it means कि प्योर मिल्क जो है हमारे पास, ठीक है, सीपी निकालते पहले। प्योर मिल्क कितना है, 20 लीटर है, और पर लीटर का कॉस्ट कितना है, तो पर लीटर का कॉस्ट हम लोग का 18 है। इस प्योर मिल्क में प्योर वाटर मिलाया गया, इस प्योर मिल्क में क्या मिलाया, ये प्योर वाटर मिलाया। कितना वाटर मिलाया, 5 लीटर, जिसका कॉस्ट क्या था, 0 था, कोई कॉस्ट नहीं था। कॉस्ट क्या था इसका, 0 था, कोई कॉस्ट नहीं था। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें तो 18 36 360 हो गया, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 0, तो वही वैल्यू हो गया 360। ठीक है, अब एक बात बताओ कि कभी दुकान में दूध लेने गए हो तो कभी वो बोला है कि हम मिक्सचर बेच रहे हैं दूध और पानी का, कभी नहीं बोलता। वो हमेशा अपने दूध को बोलता है बहुत बढ़िया है। ग्वाला भी दूध देने के लिए आता है तो कभी बोलता है कि हम पानी मिलाए उसमें, बोले खाली बाल्टिए धोए थे और कुछ नहीं किए थे। ठीक है, वो भी पानी मिलाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। कोई बोलता है कि दूध और पानी का मिक्सचर है, कोई। उसी तरह ये जो दुकानदार था वो क्या बोला कि हम प्योर दूध दे रहे हैं। ठीक है, बाजार में 18 रुपया लीटर बेच रहे, तो मेरा रिश्तेदार है दूर का, हम 18 रुपए लीटर दे देंगे। लेकिन ग्वाला किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। ठीक है, वो अपना आदमी को भी अगर दूध देगा ना, उसमें भी बोलेगा मिला दे थोड़ा पानी, नहीं पता चलेगा। समझे, तो वो क्या कर रहा है कि 20 लीटर प्योर दूध में 5 लीटर पानी मिला रहा है, और उसको क्या बोला कि हम अब जो बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो है 20 लीटर का दूध हो गया, 5 लीटर उसका पानी हो गया, दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 25 लीटर। अब इस 25 लीटर को वो 18 रुपए करके, पहले भी 18 था, अभी भी 18 बेच रहा, लेकिन क्या किया वो बदमाशी की 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा 18 5 0 9 18 36 450। तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 90 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, then the profit of the milkman when he sells all the mixture at CP, then the profit of the milkman। ठीक है, प्रॉफिट तो निकाल लिए, प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछा तो 90 अपॉन 360 इंटू 100, तो 0 से 0 तीन बार में कट जाएगा 4, 1 अपॉन 4 मीन्स 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, परसेंटेज में रहा तो 25%, नहीं तो 90। इस चीज को थोड़ा सा देखो फिर बताते आगे। कौन कौन प्रेजेंट है वो क्लास में, एक बार बताना तो। अंजलि है, गायब हो गई रहना। चलो देखो, ये समझने वाला बात क्या बताया, वो दूध 18 रुपए लीटर लिया और 18 रुपए ही बेच दिया, तो सीपी 18 एसपी 18, फिर भी 25% का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हम लोग का हुआ है वो इस पर हुआ है। ये जो पानी मिलाया है ना 5 लीटर, वो क्या किया कि 5 लीटर जो उसका पानी जो मिलाया था, एक्स्ट्रा जो पानी मिलाया था, क्योंकि उनको पता है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, उसका कोई पैसा लगना नहीं है ना, तो पानी का वैल्यू 0 है, और पानी को 5 लीटर पानी को भी 18 का रेट पे बेच दिया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर देख सकते थे, हम लोग का डायरेक्ट ही हम लोग का 90 आंसर आ जाता। समझे या नहीं समझे, ये बताओ। या हम लोग को अगर परसेंट में कैलकुलेशन करना हो तो तुम ऐसे भी देख सकते थे कि 5 लीटर पानी मिला रहा है, कितना में, 20 में, तो 100 पे कितना, 1/4 मतलब 25% हो गया ना। ठीक है, इसको एक ऐसे समझना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ध्यान रखना कि ऊपर में फ्री रहेगा, ठीक है, नीचे में प्योर रहेगा, और फिर इंटू 100, तो तुम्हारा इसमें एक्चुअल जो परसेंट प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। इतना करने का जरूरत नहीं होगा। तो फ्री कितना है, 5 5 लीटर वाटर मिला रहा वो फ्री है। प्योर कितना है, 20 लीटर मिल्क, 20 लिखे इंटू 100, 5 5 के 20, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग का 25%। समझ में आया, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%। देखो 33.33 अगर ऐसे कुछ अगर आता है मेरा परसेंट में,
तो फ्रैक्शन बनाना हम तुम लोग को सिखा है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं पता तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ना। फ्रैक्शन अगर नहीं पता तो एग्जाम में इसको देख के छोड़ देगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 33 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 में 3 से करो, बार बार रिपीटिंग आ जाएगा, है ना, बार बार रिपीटिंग तुम्हारा डेसिमल आ जाएगा। ये इस बात को फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/3। 33 1/3% को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 1/3 ही तो होगा, है ना। फ्रैक्शन इसका हम बताए हुए, और तुम लोग को ये बताए थे कि ऊपर वाला फ्री होता है और नीचे वाला जो तुम्हारा मेन जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट जैसे प्योर मिल्क है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सोडा है तो सोडा हो गया। यहाँ पे हम लोग का कंपेयरिंग वैल्यू दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, किसी भी चीज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। किस रेशियो में लाया गया, 1:3। वाटर एंड सोडा, तो ये वाला वाटर हो जाएगा, ये वाला सोडा हो जाएगा। वाटर फ्री होता है तो ऊपर वाला वाटर हो गया, जो भी खेल है सब फ्रैक्शन वैल्यू का और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो हम लोग का क्या है, 9.0909 एंड 09, ठीक है। ये हम लोगों का इसका वैल्यू, इसका अगर वैल्यू ले तो 9 एज इट इज आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/11। निकाल के देखना, 0909 परसेंटेज में पढ़ाए थे ये, ठीक है, परसेंटेज में ये करवाए हुए हैं हम लोग 9 1/11। तो 9 से 1/11%, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 1/11। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/11। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला कंपोनेंट है प्योर, ऊपर वाला फ्री है। इसका मतलब ये हुआ हम लोग का कि जो मिल्क है, मिल्क है ना, मिल्क 11 है तो वाटर 1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लीटर के जो मिक्सचर है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर के मिक्सचर में, 1 लीटर के मिक्सचर में, 1 लीटर के मिक्सचर में वाटर कितना होगा, तो वाटर का क्वांटिटी 1 है। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो टोटल हो रहा है हम लोग का 12 यूनिट। ये 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 ml को, क्योंकि 1 लीटर को लिखने के लिए 1000 ml कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 12, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको पॉइंट में देगा तो 2 पॉइंट तक निकाल देना। तो हम लोग के पास एक तरफ क्या है, प्योर मिल्क, और दूसरी तरफ हम लोग का ये फैट है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको, 25% का हो रहा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। हमको पता है कि ये वाला जो होगा हम लोग का फ्री का होगा, ये वाला हम लोग का प्योर होगा। बताया ना कि ये हम लोग क्या है 25% प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही निकालते थे, ठीक है। इस बात पे किसी को दिक्कत है, 20%। तो प्योर मिल्क कितना है इसमें, 4 है, और फैट कितना है 1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल में फैट का परसेंटेज क्या होगा, तो टोटल कितना है 4 और 1 5, 5 में 1, तो 100 में कितना 20%। क्लियर।